Right, guys? Special days. But I was expecting a bigger class today because I'm going to start in it. Please come in. I know. Still, I was still expecting a bigger class today. Very important class. Let's see. First of all, unit uh, last page of unit 7, guys. Open your open your main book. Special days. Number 2, on page number 61. Okay, there are some phrases in the box. You understand the meaning of them all. Cake banana, make a cake. Have a special meal. Have a special meal. Have a special meal. Have a special meal. Wear special clothes. Wear special clothes. Have a party. Give cards and presents. Go out with friends. Give flowers or chocolates. Have fireworks. In Hindi, have fireworks. In Hindi, पटाखे फोड़ना, पटाखे जलाना. Okay, have fireworks. Okay, पटाखे चलाना, चलाना जलाना फोड़ना, जो बोलना बोल लो. Okay. Okay, now tell me, these are common things we do on special days, but how do we celebrate? For example, how do we celebrate a wedding day? We give cards and presents. We wear special clothes. Okay. The boy and the girl wear special clothes, right? The rest of the people wear new clothes, but not special clothes. But the boy and the girl, they wear special clothes, right? Yeah, their wedding dresses, their wedding clothes, right? Usually it's expensive. Have a special meal. Okay. They have a party. They have a party, exactly. Yes, and they have fireworks right in front of the girl's house. Yeah. To announce their arrival. To announce their arrival. हम पहुंच गए हैं बताने के लिए क्या करते हैं? They have fireworks. Right. Okay. Now tell me, how do we celebrate birthdays? We celebrate birthdays too, right? We don't make a cake, but we buy a cake. Right. Some people make a cake too. Please come in. Some people make a cakes too if they are good at baking. All right. And they have a party. Sometimes party. Okay. Party. They go out with friends sometimes. Some people go out with friends. Yeah. Those who attend the party, they give cards and presents. Do they give cards? Those simply give presents mainly, right? Sometimes they buy a card as well. Birthday card, happy birthday card. Okay, and how do we celebrate Valentine's Day? I don't know. You were about to answer and then you suddenly decided to back off. Okay, I think we all give flowers and chocolates and gifts. We give cards and presents too. नहीं सुनेगा बात बोला भाई तो चला गया आर्ग्यूमेंट करता है इज्जत नहीं है बड़े का प्लीज कम इन ओके Inzamam? Inzamam, how do you celebrate Valentine's Day? First of all, you make an excuse at home to go out.
Especially when you're a girl, you need a special excuse to be out for 2 hours, 3 hours. Yeah, or maybe you say that sir is giving a special class today. Yeah, mostly हम ही लोग के नाम पे बिल पड़ता है, you know? Yeah, exactly. Sir is giving a special class. Nah, nobody goes out at night. It's the daytime. Parks are crowded on that day. And there are Bajrang Dal people standing outside. Oh, beta. Okay. उनको कहते हैं dogs in the manger. न देखो न मेको चूल्हा में झोंको, न तोको न मोको चूल्हा में झोंको. Do you not know this line? Yeah, some people have that attitude. हमको जब अच्छा नहीं कुछ मिल रहा है तो आपको भी अच्छा नहीं होने देंगे. All right. So that is dog in the manger attitude. नाद में जाके कुत्ता बैठ जाए, ना खुद खाएगा, जो नाद में वो खाता तो है नहीं, और गाय को भी खाने देगा. राइट. डॉग इन द मैंगर. मैंगर मतलब नाद जिसमें गाय खाती है, उसको मैंगर कहते हैं. डॉग इन द मैंगर. मैंने बहुत पहले पढ़ा था ये फ्रेज, मैंने सुना नहीं लोगों से. I've heard this, dog in the manger. Sorry, I've read this in a book. Okay, dog in the manger. Many years ago. So some people have that attitude, dog in the manger attitude. If they don't get something, they won't let you enjoy it. Oh, ये बजरंग दल वाले ना, हम खुश रहेंगे ना आपको खुश रहने देंगे. Okay. Next. So, yeah, different people celebrate things in different ways. We have 3-4 phrases. Have a party, have fireworks, have a special meal, right? Yeah. ये तीनों important phrases हैं. Have a special meal. Do you have a special meal on your birthday? I guess, yeah. Mommy cooks something special, right? On birthdays, we have a special meal, don't we? We don't have a regular meal. दाल भात सब्जी तो नहीं खाते birthday दिन. You know, on your birthday, you normally get to eat something special. You have a special meal. मार खाता है. Okay. Number 3, control Sajid. It is not India Got Latent. Number 3, complete the lines. What are the occasions? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear grandma. Happy birthday to you. Right? Okay. Number 2. Did you get any birthday cards? Valentine cards? Wedding cards? What do you think? Okay, you can't decide right now. Number 1 पे कैसे decide कर लेंगे? आगे पढ़ के पता चलेगा ना? Right? So find out the context. Yeah, I did. Listen to this. Roses are red, violets are blue. You are mine. Da, da, da. I love you. What do you think? What do you think? What do you think? Birthday card, wedding card, Valentine card? Yeah, let's complete the conversation. Did you get any Valentine cards? Grammar point. Any के साथ cards. वो did you past tense हो गया? वो एक point है. दूसरा point बेटा, any plus plural noun. पहले ही मस्ती वाली बात हो, लेकिन ध्यान तो देना है. Any Valentine cards. Any plus plural noun. इसका मतलब है बोलने का टोन समझना कि आया है एक आध गो, कोई कार्ड वार्ड आया, 2 भी आ सकते, 3 भी आ सकते, राइट? सो जहां पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी वहां हम लोग बोलेंगे एनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन. इसलिए नहीं पूछना डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड्स, गलत बात, क्योंकि मल्टीपल का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए. गर्लफ्रेंड्स कितनी होनी चाहिए? एट अ टाइम 1 एट अ टाइम, एक समय पे एक समय पे एक, 1 at a time. You break up with her, you can have another. But when you have one and you have another, problem. And people will judge you. People will make comments about you.
They will call you by certain names, you know. Okay, let's see. Did you get any Valentine cards? पैसा सा पॉकेट में. Do you have any? Monies or money? Money is uncountable, तो कहाँ से आ जाएगा? दूध दूध बच रहा है. Do you have any milk? Do you have any water? अब बोले सर प्लूरल बोले तो इसका होता ही नहीं ना. Water, milk, money, these are all uncountable nouns. So how will you use the plural? Okay, fine. Did you get any Valentine cards? कुछ और पूछ लो. Do you have any extra pencils? Do you have any extra pencils? Did you get any Valentine cards? Yeah, I did. Listen to this. Roses are red, violets are blue. You are my Valentine and I love you. Got it? It's a very common, rhyme. People use this on their Valentine cards. Roses are red, violets are blue. You are my Valentine and I love you. You're my iPhone. Acha, why I flew? And I love you. Okay, rhyming words. You're looking for rhyming words. Yeah. Okay. Roses are red, violets are blue, you are da, and I love you. Okay, so rhyming scheme. Okay, he's trying to look for the rhyme. Well, Valentine. Let me just add a little bit. The way Indians celebrate Valentine's Day is different from the way people in other countries celebrate. In other countries, you propose to someone, will you be my Valentine? Will you be my Valentine? Yeah, right. So when they ask someone, will you be my Valentine? And they go out together in the evening. They go to clubs, they go to have parties, they do whatever they like doing, you know. So they invite, ask people to be their Valentines. And some people secretly send a card to somebody. Secretly. Listen to me, Azhan. They secretly send a card. They don't tell the person who they are. For example, if there is a person I admire, there is a person I like, I will secretly send a card. I won't tell who I am. Just say some nice things to that person. How do you think about this idea? Hi, you do not write your name. You send a card to somebody and you don't tell that person who you are. You just tell them that, yes, there is somebody who admires you, somebody who likes you. Now, what do you think about this? There are two ways to look at it. दो तरीके से देख सकते हैं. एक तो बिहारी बोले पैसा बर्बाद किया, नाम भी नहीं बताया, कार्ड भेज करके. Okay, तो बेकार हो गया पैसा. And if you look seriously, I think there is a very, very interesting, this is a very interesting idea. Okay, tell me, आपको कैसा लगेगा? Just think about it. When you know there is somebody who likes me, it will give you confidence or it will make you feel upset. It will make you happy or it will just make you a little more confident of your personality. हम सब, we are all victims of hatred from and passive aggression. जहां हम लोग रह रहे हैं, हर कोई हमें फील कराने पे तुला है कि आप में ये कमी, आप में ये कमी, आप में ये कमी. Am I right? आप ऐसा फील करते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो, आपको लोग आप में ये खराबी हो, ज्यादा लोग यही फील करा रहे हो आपको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. इसलिए मैंने कहा पैसिव एग्रेशन. हाँ, तो ये कैसा आपको फील कराता है? हैप्पी और अनहैप्पी? अनहैप्पी इनसाइड. एंड it affects your behavior, your attitude. You become slightly negative. Imagine that you are at home and you receive a card or a message on your WhatsApp or Facebook that you are fantastic, I really like you, you're amazing, stay this way, कुछ भी. और उसके बाद फिर कोई बकवास नहीं. ठीक है, उसके बाद कोई बकवास नहीं. इसके बाद नॉर्मली क्या होता है, हमारे कल्चर में बकवास शुरू होता है, राइट? कि लेट्स टॉक एंड दिस दैट, लेट्स मीट, वो सब कुछ नहीं, बस एडमायर करके छोड़ दिया आपको. तो आपको कैसा लगेगा? यू विल फील गुड दैट देयर इज समबडी हु लाइक्स मी, आई एम नॉट दैट बैड. जो लोग बुरा फील करा रहे हैं आपको, शायद वो गलत हैं, बिकॉज देयर इज समबडी हु likes you. So I think we all human beings need this feeling
that somebody likes us. Now, I don't know whether you understand my point of view or not, but what I'm saying is maybe not exactly in sync with our traditions and all, but I'm definitely talking about something that our mindset, our nature, our personality, it really goes with it. Most of us are upset inside, insecure of our looks. A lot of us फील कि हम उतने गुड लुकिंग नहीं है. हम सब लोग को ये फीलिंग रहती है अपने बारे में. अपनी नाक पसंद नहीं आती, आंख पसंद नहीं आते, शरीर का पतला होना पसंद नहीं आता, मोटा होना पसंद नहीं आता. We all have insecurities of our appearance, about our appearance. Am I right or wrong? आप लोग मानते नहीं, बोलते नहीं, लेकिन सब अंदर से परेशान रहते हैं. आईना देखते हैं, मन में ख्याल आता है. तो अगर आपको पॉजिटिव मैसेजेस भेज रहा है, लेकिन कोई चाहत नहीं उसकी कि आपको कुछ उसको वापस पलट के कुछ उसके बदले में कॉम्पेंसेट करना है, तो कैसा फील होगा आपको? ओह राइट, दैट पर्सन इज डूइंग इट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. बात खत्म. तो व्हाई नॉट मेक इट अ डे वेयर वी सीक्रेटली we message those people, send them messages or cards to those people we admire without expecting anything in return. I think this will make the world a little happier. People will be a little happier if everybody started doing it. So, yeah, I like this idea of Valentine's Day. To, send people messages or admire them, send a card without expecting anything in return. Anyways, देखो आगे. Did you get any Valentine cards? Yeah, I did. Listen to this. सुनिए जरा. Roses are red, violets are blue. You are my Valentine and I love you. It's written on the cards. It's written on the card, right? Then A says, wow, do you know who it is from? Do you know who it is from? Then B replies, no idea. It means the person who has sent this card did not write his or her name. Do you know who it is from? Look at this line. Do you know who it is from? पता है तुमको कौन भेजा है? यही है ना इसका मतलब? हिंदी समझ में आ गई? Yes. पता है कौन भेजा है? अब देखना कौन सा हिस्सा कहाँ गया. पता है कहाँ है? Do you know? कौन भेजा है? Who it is from. अब do you know हटा दो, खाली बोलो कौन भेजा है. कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो. खाली तुमको ये नहीं बोलना है पता है, ठीक है, बोलना है किसने भेजा है. बेटा सामने सेंटेंस है बेटा, वो तो हम लोग को आता ही है बोलना. गलत है, तो मैं इसीलिए नहीं अप्रिशिएट कर पाते. छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो जो मैंने बताया. बेटा वो सब तो है ही. तुम सेंट वाला वर्ड ला ही क्यों रहे हो? क्या हमें नहीं पता है कि हु सेंट से हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ सेंट वर्ड यूज हुआ है, तो यहां से क्या सीखे हम लोग? मेरा प्रॉब्लम आपसे एक ही है, आप यहां पढ़ोगे और पीछे वाला सीखोगे. ऐसा कैसे हो गया? सेंट कैसे सिखा सकता है ये सेंटेंस? ये सेंटेंस जो सिखा रहा है वो ना सीखो. क्या लिखा है? डू यू नो हु इट इज फ्रॉम. अब मैंने कहा डू यू नो अगर नहीं रहे तो ये सवाल कैसे पूछेंगे किसने भेजा है? डू यू नो हटा देंगे, बचा क्या? हु. अब कोई भी ग्रामर का जितना भी आज तक क्लास में सीखे हो बता दो कि ये करेक्ट इंग्लिश है. हु इट इज फ्रॉम जो पढ़ाए उसके बेसिस पे बताओ कि ये सही इंग्लिश है कि रॉन्ग इंग्लिश है. हु इट इज फ्रॉम. और गलत है तो किस बेसिस पे गलत है? क्या पढ़ाया है मैंने ऐसा? जवाब देना. मैंने क्या सिखाया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑर्डर, यही सब सिखाया ना. बस उससे एनालाइज करो और क्या. तो कर लो, बस तुम्हारे पास दिमाग था फिर भी तुम अप्लाई नहीं कर रहे थे. हो गया. क्या होना चाहिए था? हु इज इट फ्रॉम होना था. बस देखो प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की. तो तुम लोग जहां भी बोले हैं सोचने के लिए, उस लाइन पे सोचना ही नहीं चाहते हो तुम लोग. तुम्हारा दिमाग प्रोग्राम ही नहीं हो सब चीज के बारे में सोचने के लिए, जो मैं इतने दिन से सिखा रहा हूं तुम्हें. बोलो हाँ कि ना. तुम सोच भी नहीं रहे थे सब्जेक्ट वर्ब के बारे में. तुम्हें लगता है गलत बोल दिया. क्या गलत बोल दिया भाई? हु इट इज फ्रॉम सामने तो लिखा है. डू यू नो हु इट इज फ्रॉम. पता है कौन भेजा है, यानी कि सेंटेंस सही है. लेकिन डू यू नो हटा लेंगे
तो वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? क्या चेंज होगा? कैसे हो जाएगा? अगर मैं बोलूं वाई आर यू सैड, तो सवाल सही है कि गलत है? वाई यू आर सैड? नहीं, ऐसे नहीं पूछ सकते। क्या पूछना पड़ेगा? वाई आर यू सैड। एक बेसिक बात, बी वर्ब की पोजीशन। कितनी बार पढ़ाया मैंने ये बात? तो फिर क्यों मिस कर जाते हो? हु, वाई आर यू सैड, ठीक है। लेकिन अगर बोलेंगे कि बताओ ना, अगर आगे बोलते टेल मी, तो आप फिर आप आगे वैसे नहीं बोल पाएंगे। बोलो, टेल मी वाई यू आर सैड। अब उल्टा हो गया वर्ड ऑर्डर, ये ध्यान देना है। जब आगे कुछ लग जाता है तो वर्ड ऑर्डर नॉर्मल सेंटेंस वाला बन जाता है। बी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, नॉर्मल सेंटेंस में आगे, क्वेश्चन में आगे आता है। तुमको पता है कि तुम क्यों सैड फील कर रहे हो? डू यू नो वाई यू आर सैड? कुछ भी आगे लगाओगे, विल यू टेल मी वाई यू आर सैड? वो वाला पॉइंट हम चाहते थे कि तुम ध्यान देते, तुम तो उसको एकदम निकाल के फेंक देते दिमाग से। डू यू नो हु इट इज फ्रॉम? तुम्हें हमेशा वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट वर्ब पे ध्यान लगाए रखना चाहिए हर एक नए सेंटेंस। जब भी कुछ पढ़ो, अगर सिंपल सिंपल सेम 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 है तो बढ़िया बात है, आदत कंफर्म होती जाएगी कि ऐसा ही रखना दिखना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब। और कुछ नया होगा तो पता चलेगा अरे इसमें कुछ अलग हो रहा है। तो सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पे देना है? सब्जेक्ट और वर्ब, दो वर्ड्स पे। डू यू नो हु इट इज फ्रॉम? डू यू नो तक तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हु इट इज फ्रॉम कैसे हुआ? अच्छा, नॉर्मल सेंटेंस है। हु इज इट फ्रॉम, किसने भेजा? ठीक है सर, आई लाइक दिस thing you have, okay? मैंने हाँ, इट्स अ गिफ्ट। मैंने कहा यस इट इज अ। आपका सवाल हो गया सर, आपने पूछ लिया मुझसे, बिना सेंड वर्ब यूज किए पूछ लिया किसने भेजा किसने दिया। आपने पूछ लिया मुझसे कैसे? हु इज इट फ्रॉम? रिकॉर्डिंग खराब हो गई होगी बिकॉज ये यहाँ पर अब तक क्लियर नहीं होगी रिकॉर्डिंग, अब जाके क्लियर हो रही होगी, पता नहीं। अच्छा ही था, चीख रहे थे थोड़ा देर तक। हु इज इट फ्रॉम? अप टू नो, अगर दिमाग काम करता है तो सारे चारों वर्ड्स को एनालाइज करो, कौन कहाँ गया, क्यों गया। हु इज इट फ्रॉम? हु इज इट फ्रॉम? ठीक है, कॉल आया मेरे को, देयर इज अ कॉल। हु इज इट फ्रॉम? और या हु इज इट भी खाली करके छोड़ सकते हैं इस मामले में। हु इज इट मीन्स हु इज कॉलिंग, हु इज इट। आगे सुनो। कभी ऐसा हुआ पापा कुछ लेके आए, मम्मी कुछ लेके आया, कोई दोस्त वोस्त कुछ फ्रेंड वगैरह कुछ गिफ्ट लेके आया, तुम पूछते हो किसके लिए है? मेरे लिए है? किसके लिए है? ऐसा पूछा होगा तुमने खुश होके, एक्साइटेड, किसके लिए है? किसके लिए है पापा? ऐसा पूछा होगा। चलो इंग्लिश में पूछो। फिर तुमने पहले जवाब दिया, बाकी से समझ में आ रहा है ना? पहले दिमाग काम किया ना तुम्हारा कि फॉर बोलना चाहिए। हु इज इट फॉर, ये स्पेशल नहीं है इंग्लिश में, बात बता दे रहा हूं साफ। इट्स जस्ट दैट ही हैज गॉट लॉन्गर एक्सपोजर और दिमाग चलता है इसका। हिज माइंड इज एन एक्टिव माइंड। और मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा लड़का, अब तक प्री इंटरमीडिएट में ही होता, मैं इसको प्रमोट कर चुका होता। If he had followed the typical thing, listening, mobile phones practice, sentence practice at home, he would be in the pre-intermediate by now. Okay, तो कंटिन्यू करते हैं। क्या था सेंटेंस, क्या था सवाल? किसके लिए पापा? मेरे लिए है। हु इज इट फॉर? ओके, ला मान लो जूता लेके आए पापा, ठीक है। किसके लिए पापा? मेरे लिए है पापा। किसके लिए है पूछो। दिमाग लगाओ। अच्छा, जूता बोल के पूछ लो, जूता किसके लिए है, ऐसा कर लो। चलो जूता बोल के पूछ लो, किसके लिए जूता ये? जब आप लोग हु इज इट फॉर कर रहे थे, पता क्या हुआ? आपने वो तीनों वर्ड को रट्टा मार लिया। आपने अलग अलग तोड़ के नहीं सोचने की कोशिश की कि कौन सा शब्द मेरे हिंदी के कौन से हिस्से के लिए है।
अगर आप ऐसा सोचते तो फिर ये वाला भी कर लेते, क्योंकि मैं तो लेके जाने वाला हूँ अगले लेवल पे फिर से। अब बताइए कि अभी आपने जब पूछा था किसके लिए पापा, मेरे लिए है, कोई चीज थी, मैंने यही बताया था कुछ गिफ्ट है कुछ है, तो आपने पूछा किसके लिए पापा, मेरे लिए, हु इज इट फॉर कर दिया। मैंने कहा इस बार जूते लेके आए पापा, पापा के हाथ में नए जूते हैं, किसके लिए पापा, मेरे लिए हैं ये जूते, किसके लिए पापा। चलो पूछो। बढ़िया बढ़िया साजिद बेटा, बहुत बढ़िया। हुआ दीज शूज फॉर, क्योंकि इट जो था वो समान था, इस बार समान क्या है, शूज। तो आपने बोला हु आर दीज शूज, इट था तो इज था, इट के लिए इज, लेकिन दीज शूज है तो क्या बोलेंगे, हु आर दीज शूज फॉर, हु आर दीज शूज फॉर, ये जूते किसके लिए पापा, हु आर दीज शूज फॉर, हु आर। अगर आप दीज शूज के जगह प्रोनाउन यूज करना चाहें, मान लो कॉन्टेक्स्ट में क्लियर है कि जूते हैं, प्रोनाउन यूज करना चाहे तो आप क्या बोल देंगे, ऑब्वियसली शूज के लिए एक ही प्रोनाउन है तुम्हारे पास, बताओ कौन सा, दे, इट हो नहीं सकता, इट इज सिंगुलर और शूज प्लूरल होते हैं, हु आर दे फॉर। ठीक है दोस्तों, बस समझ आ रहे, ठीक है। और चलो एक मजाकिया कर देते हैं, मान लो तीन लड़कियां हैं, ठीक है ना, राइट, और तीन भाइयों के लिए अलग अलग हैं कि इससे इसकी शादी होगी, और एक और है छोटी सी, तो ये छोटा सा पूछ रहा है ये किसके लिए है, देखा कि तीन भाई के लिए तीन है तो एक छोटी वाली है, तो इसने पूछ दिया कि ये किसके लिए है। अब बोलो कैसे, कैसे पूछा इंग्लिश में, हु इज शी फॉर, हु इज शी फॉर मी, फॉर मी, राइट। ओके, आपको सिर्फ एहसास कराना था कि वो जो बीच में था ना वो इट, वो जिस चीज की बात हो रही है, अब यहाँ लड़की है तो हम कैसे इट बोले, कैसे दे बोले, हु इज शी फॉर, राइट। तुम यहाँ किस लिए हो, कभी कभी गुस्से में ऐसा बोले, कोई काम नहीं किया किसी ने तो, तुम यहाँ किस लिए हो, वॉट आर यू हियर फॉर, वॉट आर यू हियर। अगर तुम ये रूम भी साफ नहीं कर सकते, इफ दिस रूम हैज टू बी डर्टी लाइक दिस, देन व्हाट आर यू हियर फॉर। ओके, इफ यू कांट इवन क्लीन दिस रूम, इफ यू कांट टेक केयर ऑफ दिस टेबल, व्हाट आर यू हियर फॉर। जैसे हु आर यू हियर फॉर, किस आदमी के लिए, कौन से पर्पस के लिए, कौन से काम के लिए हो, तो क्या पूछेंगे, कनेक्शन है कि नहीं उसी सेंटेंस से। अगर अलग अलग हिस्सों को समझे तो, और रट्टा जो मार लिया, हु इज इट फॉर, हु इज इट फॉर, चार लाइन वर्ड, चार वर्ड बोलने का रट्टा मार लिया, अलग अलग महसूस नहीं कर पा रहा है कि हु किसी आदमी के लिए है, इसलिए हु आया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तो आदमी की बात नहीं हो रही, किस लिए हो तुम यहाँ, कौन से पर्पस के लिए हो, तो यहाँ पर हु तो नहीं बोल सकेंगे, तो क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू हियर फॉर। अगर ये छोटा छोटा मैटर भी तुम नहीं संभाल सकते हो तो किस लिए हो तुम यहाँ, इफ यू कांट हैंडल सच स्मॉल थिंग्स, सच ट्रिवियल मैटर्स, trivial, by the way, नहीं पता है छोड़ देना, कोई इग्नोर कर देना, if you can't handle such trivial matters, what are you here for then, why am I paying you this salary, why am I hope you understood everybody, मजा आया, who is it for, लेकिन चले कहां से थे, who it is from से। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश के शब्दों को अलग अलग पर्पस पूछिए, ये वर्ड हिंदी के किस आइडिया के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे हिंदी के सेंटेंस में ऐसा कौन सा आइडिया रहता है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए ये वाला वर्ड है यहाँ पर इंग्लिश में। जैसे चार वर्ड थे, हु इट इज फ्रॉम, तो चूंकि ये गिफ्ट किसी से आया है इसलिए फ्रॉम था, लेकिन अगर गिफ्ट किसी को जाएगा तो फ्रॉम कैसे होगा, पूछेंगे किसके लिए है भाई ये गिफ्ट, तो फ्रॉम गया तेल लेने, बचा क्या, फॉर, हु इज इट फॉर। आसान है, एब्सोल्युटली, बस थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। ऐसा है कि अभी जो पढ़ा दिया समझ में आ गई, ठीक, लेकिन लैंग्वेज का प्रॉब्लम ही है, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम। मेरे टीचर मेरे को पढ़ा दिया इटालियन, जैसे रोजाना मेरी टीचर थी, मुझे इटालियन बता दी कुछ, मैं क्लास में बिल्कुल समय, हाँ रोजाना फैंटास्टिक, और 2 दिन बाद मेरा फिर क्लास है और मैंने 2 दिन छुआ ही नहीं उसको, क्लास में पहुंचा, क्या पढ़ाया था तुम, मैंने हाँ कुछ ऐसा कुछ बताए थे, पूरे याद नहीं आ रहा है। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, रिवाइज ना करो और वो स्लिप कर जाएगी तुम्हारे दिमाग से। तो अगर इस टाइम का वैल्यू करना है जो यहाँ बिता रहे हो,
तो ऐसा समझ लो ना कि तुमने सारा पानी भर लिया एक बाल्टी में, लेकिन उसका छेद छोड़ दिया, तो फिर भरने का फायदा क्या था? थोड़ा सा मेहनत करो, छेद भी बंद कर दो, नीचे से कैप लगाने का लगा दो भाई, ताकि पानी रह जाए। तो ये जमा करना हुआ यहाँ करके। अब इसको गैप जो है, प्लग है, वो बंद कर देते आधा घंटा पढ़ के घर पे, बस आधा घंटा 15 मिनट रिवाइज कर लो कि नहीं जाएगा दिमाग से, आई प्रॉमिस दैट। और एक रिवीजन कर लो, दो रिवीजन किया तो पक्का नहीं जाएगा। एक रिवीजन है, बाकी एक रिवीजन मैं दे दूंगा कभी क्लास में। आज का रिवाइज कर लो घर जाके। गॉट इट? डू यू नो इट इज फ्रॉम? नो आइडिया। बिल्कुल पता नहीं कौन भेजा है, आई हैव नो क्लू, नो आइडिया। सो कैसा लगेगा लड़कियों, अगर आपको घर पे मैसेज आ जाए, वैलेंटाइन डे के दिन कार्ड आ जाए, तो बोलो सर पापा और भैया मिल के पूछेंगे कौन है कौन है, जहन्नम बना देंगे जिंदगी। राइट? वेल ना, आई डोंट नो, मीन्स इफ देयर इज नो नेम दैट इट शुड बी ओके आई थिंक। बट पापा नहीं मानेंगे, उनको लगेगा नाम इसको पता है। ये दैट्स द प्रॉब्लम। या हाँ, पप्पाज अंडरस्टैंड, भाई ज्यादा परेशान करते हैं, उनको ज्यादा टेंशन होता है, पता नहीं क्यों, वो अपना नेचर जानते हैं, वो क्या कर रहे हैं बाहर, उनको लगता है सारे लड़के वही कर रहे हैं। ओके, एनीवेज, लेट्स नॉट टच दैट टॉपिक अगेन, controversial things. We will stay on focused on English. And I think you guys enjoyed that. Who it is from, who it is for. हाँ, हमको पता है किस भैया कुछ लेके आए, मान लो गुलाब का फूल लेके आए, हमको पता है किसके लिए है, बोलते रहे हो मम्मी के लिए है, लेकिन मम्मी के लिए नहीं है। आई नो हु इट इज फॉर। एक गुलाब का फूल है तो, अगर गुच्छा है तो बोलेंगे आई नो हु दीज फ्लावर्स आर फॉर। आई नो हु दीज फ्लावर्स आर फॉर। पागल हो जाते हैं लोग जो बिहार से में इंग्लिश सीखते हैं, ये सब वर्ड ऑर्डर से परेशान हो जाते हैं। मैं पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, टीचर्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये कोलोकियल है, ये बातचीत करने का तरीका है, उनका जो थ्योरेटिकल पढ़ाई है ना उससे मैच नहीं करता। वो तो कहेंगे ये हु गलत है, वो क्या बोल देंगे, हुम यूज करो, हुम। बस नहीं, उनको नहीं पता कि सारी दुनिया कहाँ चली गई इंग्लिश में, वो अभी तक ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन और ऑक्सफोर्ड ग्रामर में अटके हुए, इंग्लिश वहीं से ले रहे हैं अपना। ठीक है, एग्जाम में सही है कि हुम का अपना जगह है, एग्जाम में यहाँ पूछते हैं, ठीक है, इंडिया में। लेकिन पूरी जिंदगी भर आप हुम नहीं बोलोगे सर, याद रखना। आप इंग्लैंड में बिता दो पूरी जिंदगी, आप 10-15 बार भी हुम नहीं सुन पाओगे पूरी जिंदगी में, लोग बोलते ही नहीं उतना। क्या बोलते हैं? हु। आज के डेट में हु वर्ड इज यूज फॉर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ। अब देखो कैसे, कौन मारा, हु हिट यू, तुमने किसको मारा, हु डिड यू हिट। हुम डिड यू हिट बोलने की जरूरत नहीं है, हु डिड यू हिट। तुमने मारा, यू हिट, तुमने मारा, किसी को मारा। ग्रामर कहता है इंडिया का एग्जाम के लिए, हुम बोलो, हुम डिड यू हिट, तुमने मारा, किसी को मारा, तो जिसको मारा वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तुमने मारा, तुम सब्जेक्ट हो। यू हिट, किसको मारा, किसी को मारा, तो हुम होना चाहिए, ये ग्रामर कहता है कंपटीशन के लिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ कंपटीशन तक ही लिमिटेड है, एग्जाम तक ही लिमिटेड है, उसके बाद नहीं। तो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे हम लोग, तो हम लोग कर लेंगे इसकी अलग से, देख देख लेंगे इसको कैसे देखना है, हैंडल करना है। ओके, whom it is for नहीं बोल सकते, for whom it is। I know for whom it is, I know। अच्छा सर, तुम लोग एक काम करो, देखते हैं तुम कैसा फील करते हो। बोलो I know for whom it is। तो पता है ये किसके लिए है ना। और दूसरा बोलो I know who it is for। तुम मुझे बताओ कि तुम किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। पता है क्यों? बीन स्पेंडिंग टाइम, ओके, लिसनिंग टू इंग्लिश, तो असर हो जाता है। और आज भी चले जाओगे कुछ टीचर्स के पास, तो कहेंगे हुम, फॉर हुम इट इज होना चाहिए, ये तो गलत इंग्लिश है, प्रीपोजिशन आकर में लिख दे, सब बेकार की बातें हैं। वो लोग किताब के रट्टा मार पढ़ाई, किताब की बात रिपीट करते रहते हैं। उनको दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, उनको आइडिया तक नहीं है। अच्छा बेटा बताओ, कोई अंग्रेज प्रोफेसर है या कोई अंग्रेज जर्नलिस्ट है, तो उसकी इंग्लिश खराब होगी। जर्नलिस्ट की हिंदी खराब होती है हमारे यहाँ। जर्नलिस्ट जब कोई होता है तो उसकी हिंदी पर ही तो उसका जर्नलिज्म टिका है, इंडियन जर्नलिस्ट का।
तो आप बताइए कि आप कह देंगे कि भाई वो नेटिव स्पीकर है, वो ग्रामर फॉलो नहीं करता। ऐसे ऐसी धारणाएं बना के बैठे हैं ये लोग, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे लाइन बना के बैठे हैं, और वो लाइन बड़े हिम्मत से, बेशर्मी से बच्चों को चिपका देते हैं। और बेचारे बेचारे बच्चे इम्प्रेशनेबल होते हैं, वो सर की बात मानते हैं, सुन करके कह देते हैं सर अंग्रेज लोग को थोड़ी इंग्लिश आता है, उसका तो इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता ना। इतना बेशर्मी से लाइन बोलते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अंग्रेजों को इंग्लिश थोड़ी आती है। नहीं, अंग्रेज तो देवताओं की लैंग्वेज है, वो हम लोग सीख रहे हैं। अंग्रेज बेचारे गलती कर दिए सीखने में, हम लोग ज्यादा सही सीख रहे हैं। अरे उसी की भाषा सीख रहे हैं हम, और क्या कहते हैं। क्या बात, शर्म, बेवकूफी दोनों का लिमिट हो सकता है इन सब चीजों का। कैन वी मूव ऑन? So two conversations are over. Number three, mommy, daddy, wake up. It's da 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 da. सोचो क्या होगा? What time is it? It's morning. Look, father da 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 gave me this present. Oh, that's lovely. Mary da 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 darling. अब पता चल गया क्या होगा? तीनों में एक ही वर्ड होगा, बताओ। Okay, okay. Take your time. Take your time. All the three words, like all the three places will have the same word, guys. Okay, ये clue है आपके लिए। ठीक है? You will complete the conversation with just one word. Christmas? Yes. Okay. Mommy, Daddy, wake up. It's Christmas. अच्छा, ये लाइन तुमने कितना बढ़िया सीख लिया। आपके जब छोटे बच्चे होंगे आपके घर में, इंग्लिश बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? चाचा, आज होली है। इट्स होली। इट्स ईद। ऐसे करके आप खुश होकर के बोल सकते हैं। आई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम्स? ओके। कल नहीं आएंगे सर, क्यों? इट्स माय बर्थडे। आई बात समझ में? कल नहीं आएंगे सर, क्यों? इट्स माय पेरेंट्स एनिवर्सरी। तो कोई दिन है बताने के लिए कौन सा लाइन यूज करना है मैं? इट्स का इट्स का हिंदी करने का कोई फायदा नहीं है। गौर से देखना। मम्मी पापा उठिए, क्रिसमस है आज, है ना? इट कहाँ आया? इट का कहाँ हिंदी हुआ? तो गौर करिएगा, बताने के लिए कि आज कौन सा दिन है, जो इट बोलते हैं उसका कोई हिंदी नहीं होता है। अरे यार, इतवार है आज, पगला रहे हो? नहीं सर, आज शुक्र है। इट्स इट्स संडे टुडे। नो सर, इट्स नॉट संडे, इट्स फ्राइडे। कहाँ है इट का क्या हिंदी हुआ, बताना। क्या हुआ ये इट का हिंदी? अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करिए। आज इतवार है, इट इज संडे टुडे। आज हो गया टुडे, इतवार हो गया संडे, इज हो गया है। इट किधर है? उसका कहाँ कोई हिंदी है? तो जब आप कंपेयर करोगे तो समझ जाओगे कि ऐसे ही है, ये बस है। क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट चाहिए, उसके बगैर बोल ही नहीं सकते, इसलिए क्या बोलना पड़ता है। हाँ, चाहे तो ऐसे ही बोल सकते हैं, टुडे इज संडे, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेहतर है क्या बोलना? ओके, इट्स फॉर्मल। टुडे इज संडे इज इनफॉर्मल बोलते हैं लोग, बोलचाल बोलते हैं टुडे इज संडे। नो 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 नो, इट्स नॉट संडे, इट्स फ्राइडे। फिर आगे वापस इट पे, क्योंकि यही तरीका है। किसी बोला टुडे इज संडे, नो नो नो, इट्स नॉट संडे, इट्स फ्राइडे, इट्स फ्राइडे। ओके, गॉट इट एवरीवन? वेक अप, इट्स क्रिसमस। सर 2 तारीख को नहीं आएंगे, क्या क्या है 2 तारीख को? सर मेरा एंगेजमेंट है। बोलो, इट्स माय एंगेजमेंट। हिंदी में 2 वर्ड बोला, मेरा एंगेजमेंट है। इंग्लिश में इट्स माय एंगेजमेंट। इट्स माय एंगेजमेंट। तो 2 तारीख को नहीं आएंगे, क्या कौन सी है 2 तारीख को? सर इट्स माय एग्जाम। इट्स माय, ओके। कोई भी इवेंट होता है ना, तो आप बोल सकते हो उसको इवेंट है। ठीक है? एनी कंफ्यूजन? एक दो तुम लोग दे दो, तो बता रहे थे ही
कल नहीं आएंगे, जो झूठ मूठ में, और उसके बाद फिर झूठ मूठ का एक रीजन दे दो, आ जाना लेकिन कल, ठीक है, हाँ गो है। सर आई विल नॉट कम टुमारो, बोलो व्हाई, व्हाट इज स्पेशल टुमारो? इट्स योर बर्थडे, इट्स द ब्रेज निकाह, ओके ओके, निकाह है जबरदस्ती। फाइनल, दिस लास्ट वन, ओके नेक्स्ट। भाई जल्दी जल्दी कर लो जिसको करना है। तो पता है ना फिर, उसके बाद फिर चार की बारी नहीं आएगी। आई हैव ए स्टूडेंट फ्रॉम इराक, डू यू नो? आई हैव ए स्टूडेंट फ्रॉम इराक, हर नेम इज सराब, शराब नहीं, सराब, ओके, या, एंड माय गुडनेस, I asked her about her family. She said her father had two wives. She is the daughter from the second wife. She has brothers from the first mother as well. So half brothers, half, half. Okay. And then I asked your brothers how many wives they have. Of course, one. She responded. I said, what do you mean? Why will they have more? I said, your papa has two. That's old times. What do you mean? Now my sisters-in-law won't like it. I said, so your brother, if he wants to have another wife, second wife, they will take divorce first. They will have to divorce my sister-in-law and then they can have another one. Okay. I said, but what does the law say? Is it illegal? He said, no, no, no. Legally, they can have four wives. And then I was surprised. So you don't agree with the law? He said, no. Why would we agree? I said, so you don't want to be the second or the third or the fourth wife? Then no, not at all. I will be the only one. She's single, by the way. I will be the only wife of my husband. I said, and if your husband wants another, not with me, I will leave him and then he can have another. Okay. I was very shocked. I said, what if somebody tells you, because she's religious, she is very religious. So I asked her, what if somebody tells you that having four wives is okay according to your religion? Then still no. I said, won't you listen to your experts? He said, no, not on this matter. Not on this matter. Recently, Iraqi government has passed a new legislation, a new law. Anyone can marry a 9-year-old girl. Horrible, horrible, horrible. So I asked her about that. She said, women are furious about it. The women, furious, very angry. They're very angry about it. They are protesting. Okay. I said, what if somebody again tries to explain those people who are doing it? After all, they claim, at least, I don't know what is right, what is wrong. वो तो अपना अपना होता है हर किसी का. लेकिन they're saying that it is according to your religion, that doesn't matter. I said, you won't change your stand. He said, no. I said, nothing can help you change your mind that it is okay to marry a 9-year-old girl. She said, no way. I'm not stupid that I can agree with this kind of an idea. Somebody marrying a 9-year-old girl. I said, wow. I said, it's strange that you have this kind of conviction. Because in my country, I have seen people disagreeing with something that hey, it is wrong. बाद में उनको ये सिखा देना कि धर्म के हिसाब से, तो फिर चुप हो जाते हैं, फिर सरेंडर कर देते, कहते हैं कि ठीक है फिर. मतलब मतलब हमारे सब नजर से गलत है, लेकिन जैसे धर्म के नजर से सही है, तो फिर मेरे को क्या बोलना, भैया छोड़ दो, बातें नहीं करना उस मुद्दे पे. तो पीपल हियर आर धर्म भीरू, डू यू नो दिस वर्ड? दे आर वेरी fearful of God and God's religion, you know. डरते हैं बहुत लोग, कुछ बोल नहीं सकते. जैसे मतलब मैं फिर बताऊं, आके सीधा सीधा पूछो कि तुम्हारी राय क्या है, तो एक स्टैंड है. लेकिन अगर उसके उल्टा तुम उनके धर्म की बात बता दो कि भैया धर्म तुम्हारा ये कहता है, सरेंडर मार देंगे, तुरंत अपना ओपिनियन चेंज कर लेंगे, कहेंगे ठीक है मेरा ओपिनियन नहीं है, माफ करिए, खत्म.
आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। वह जहां तक ह्यूमन नेचर को जानता हूं, मुझे ये समझ नहीं आती, क्योंकि हम जानते हैं कि आदमी जिद्दी होता है, आदमी अपने बात को पसंद करता है, लेकिन ये वाले प्राणी जो है वो मेरे समझ से बाहर है। वो तुरंत सरेंडर कर देते हैं। हाँ, ऐसे एक प्राणी को मैं जानता हूँ। मेरी माँ भी है उसमें से एक। मैं बताऊँ, when I was small and suppose my mom was a little unwell and she could not fast or do certain puja or something, तो मैं उनको बोला छोड़ दे, तबीयत खराब है, leave it. Then she will say, no, no, wait, I will first ask Pandit ji. Then Pandit ji will come. My mummy will tell him the whole situation. Then he will say, हाँ तो इसमें तो जजमान ऐसे ही सही होगा कि ऐसा छोड़ दे। पंडित जी मेरी बात बोलेंगे जो मैंने बोला कि हाँ ठीक है छोड़ दो, ठीक है। तो अब वो मम्मी को सही लग गया, तो मैंने पूछा हम भी तो वही बोले थे आपको, तो लेकिन तुम्हारे मुंह का नहीं, पंडित जी के मुंह का बोला बात है। तो फिर आई अंडरस्टैंड कि माँ इज अनएजुकेटेड। माई मदर कम्स फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड वेयर शी इज अनएजुकेटेड। बट तुम लोग समझदार लोग, आजकल के लोग, पढ़े लिखे लोग, तुम किसका वेट करते हो? तुम्हारा अपना लॉजिक नहीं है क्या? तो खैर, जाने दो, फिर से मुझे क्या। मम्मी डैडी वेक अप, इट्स क्रिसमस। मजा आता है सर आपसे बात करके, ठीक है। आई हैड एलिसन एंड सराब बोथ इन द सेम क्लास। एलिसन इज मोर लाइक मी। शी सेज रिलीजन शुड नॉट बी इन पब्लिक स्पेस। किसको मानना है माने, अपने घर पे माने। ओके, इट शुड नॉट बी इन पब्लिक स्पेस एंड गवर्नमेंट शुड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद रिलीजन। गवर्नमेंट को रिलीजन पे कोई बात नहीं करनी चाहिए, कोई मामला ही नहीं लेना चाहिए, राइट रॉन्ग कुछ नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। मेंटेन डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस विद ऑल रिलीजन एंड बी सेक्युलर। ओके, ये एलिसन का सोच। देन आई आस्क्ड हर, Sarab, she said she kind of had mixed opinion on this. She could not say it very clearly this, कि नहीं नहीं रिलीजन नहीं प्ले करना चाहिए रोल गवर्नमेंट में। वो उस मामले पर थोड़ी अलग हो गई। मैंने कहा ये तो तुम परेशान हो रही हो, यू आर नॉट एबल टू टेक ए कंसिस्टेंट स्टैंड। On one hand, she is unhappy that they have brought this law, 9-year-old girl can get married. She is unhappy about it. On the other hand, she also believes that religion should play a role in गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। तो ये तो मामला तो अलग है फिर। अब इसमें लोग लड़ते रहेंगे कि रिलीजन ये कहता है, रिलीजन वो कहता है। जो कहता है मानो, तुम मानो, तुम्हारे लिए मैं कहता है तुम मानो। बट इफ somebody brings it as law, तो सबको मानना पड़ जाएगा ना। दैट्स द प्रॉब्लम। एनीवेज, मम्मी डैडी वेक अप, इट्स क्रिसमस। आप लोग भी इस करके कुछ बोल सकते हैं, इट्स दिवाली, राइट, इट्स संडे। मम्मी उठाई सुबह सुबह, उठो मम्मी, इट्स संडे, लेट मी स्लीप। समझ गए क्या बोले? मम्मी इट्स संडे, लेट मी स्लीप। ओके, मम्मी संडे है, सोने दो ना। ओके, हो गया। इट का कोई मतलब निकला? एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी। दो एम्प्टी सब्जेक्ट होते हैं, इट और एक और होता है, बताओ कौन? देयर। देयर एम्प्टी होता है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे बोलना है तुम्हें 5 लड़के हैं, देयर आर 5 बॉय। एक समस्या है, देर इज वन प्रॉब्लम, देर इज। अब पूछो व्हाट इज दैट प्रॉब्लम। अब हाँ, पहले उसको इंग्लिश में बोलना था ना। एक प्रॉब्लम है, कैसे बोलेंगे? देर इज वन प्रॉब्लम। अच्छा, जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ देर का कोई मतलब नहीं है, इज वन प्रॉब्लम मीनिंग तो निकल गई। तो समझना होगा, ये दो सब्जेक्ट होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट कुछ ना कुछ मीनिंग देंगे, लेकिन ये नहीं देते। ओके, लेट्स कंटिन्यू। मम्मी डैडी, इतना बार बताया मैंने इट्स क्रिसमस करके, क्यों? क्योंकि ये हिंदी से थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। अब आपकी मर्जी, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे रह जाएगा दिमाग में। आज निशान बड़ा खुश है, क्या बात है सर? इट्स हिज बर्थडे, है ना? क्या बोल दिए? इट्स हिज बर्थडे। निशान इज वेरी हैप्पी। यस सर, इट्स हिज बर्थडे। हो गया। निशान समझ में आया हम लोग क्या बात की है? गुड। Number 3, Mommy, Daddy, wake up. It's Christmas. What time is it?
व्हाट टाइम। अब मिला लो भाई, देख लो इज कहाँ है, इट के पहले है ना। यही सब बार बार गौर करो, एक बात बार बार गौर करो, यार सब्जेक्ट है इट, तो बी वर्ब उसके पहले ही होगा क्वेश्चन में। और वही डू यू नो हु इट इज फ्रॉम में इट के बाद है बी वर्ब, इट इज। कंपेयर कर लेना क्यों है ऐसा। अगर ना समझ में आए तो मैं हूं बताने के लिए। व्हाट टाइम इज इट, है ना। अगर मैं इसके आगे लगा दूं डू यू नो तो क्या हो जाएगा बेटा। डू यू नो व्हाट टाइम इट इज। एनी प्रॉब्लम। डू यू नो व्हाट टाइम इट इज हो जाएगा ना। ओके। व्हाट टाइम इज इट, इट्स मॉर्निंग। देखो फिर बताया, कैसे बताया, सुबह हो गया है ना। हिंदी में ही बोलते ना, गौर से सोचिएगा, सुबह हो गया है। ठीक है। अब इसी बात को कंपेयर करिए, यार 10 बज गया है, पापा नहीं आए अभी तक घर, 10 बज गया है। इट्स 10 o'clock। इट्स, ये देखिए गौर से समझिएगा, टाइम इवेंट इस तरह से कैसे इट को यूज कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन। मम वेक अप, व्हाट टाइम इज इट, इट्स मॉर्निंग। कैसे बोला, सुबह हो गया है, 12 बज गया है, दोपहर हो गया है। इट्स, घबरा क्यों गया, आवाज धीरे क्यों हो गई, कन्विक्शन कहाँ चला गया। देखिए आवाज कैसे क्यों, कहाँ चला गया कन्विक्शन तुम्हारा। दिमाग कमजोर है इसका मतलब, तुरंत निकल जाता है दिमाग से कि क्या होना था, क्या होना था। इट्स आफ्टरनून। ओके। मम्मी उठा रही, उठ जा बेटा उठ जा, अरे सोने दो ना, अरे शाम हो गया है उठ जाओ। इट्स इवनिंग, गेट अप। गॉट द पॉइंट। इट्स मॉर्निंग, इट्स आफ्टरनून, इट्स इवनिंग। ओके। हिंदी में ये शब्द अलग तरीके से लगते हैं, और चूंकि तुम्हें बचपन से शब्दों का ट्रांसलेशन सिखाया है, इसलिए इट्स मॉर्निंग इट्स आफ्टरनून बड़े अजीब सेंटेंस है कुछ लोगों के लिए। उनको लगता है ये मॉर्निंग है, बोल देने का मन करता है उनको, क्योंकि बचपन से यही चीज पढ़ते आ रहे हैं क्या। पता है मेरी आवाज गूंज रही थी ऐसे था, तो अभी अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश। Yeah. Oh God. Okay. Hmm. My daughter can't wait for my hair to grow. Really? Okay. मैंने क्या बोला, My daughter can't wait for my hair to grow. मतलब वो चाह रही जल्दी जल्दी पापा का बाल लंबा हो जाए, वो उससे मुझे अच्छा नहीं लगता. She doesn't like looking at me with my short hair. Okay. She says you look good in long hair, with long hair. Look good with. अब मैंने इन लॉन्ग हेयर बोल दिया हिंदी की वजह से, ठीक है, लेकिन फिर तुरंत करेक्ट किया विद लॉन्ग हेयर, क्या, क्योंकि हिंदी में हम बोलते हैं लंबे बालों में अच्छे लगते हैं आप, तो मेरे मुंह से निकल गया इन पावर, फोर्स ऑफ हैबिट, लेकिन फिर मुझे तुरंत रिकॉल हो गया कि इंग्लिश बोल रहे हैं हम, तो यू लुक गुड विद लॉन्ग हेयर। गॉट इट। क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरी बात पे ध्यान दो, बोलो कैसे बोलोगे सर, आप ना लंबे बालों में अच्छे लगते हैं, बोलिए जल्दी बोलिए। यू लुक, हाँ, लुक गुड, यही तो मैं बता रहा हूं। इन लॉन्ग हेयर हिंदी के हिसाब से सही लगता है, इंग्लिश में क्या बोलना पड़ेगा, यू गुड लुक विद लॉन्ग हेयर, यू लुक गुड, यू लुक गुड विद, हाँ, ओके, ऑलराइट। मम्मी डैडी वेक अप, इट्स क्रिसमस। 5 बार उठा रहा, अब चिड़चिड़ा जाएगा बच्चा। व्हाट टाइम इज इट, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूं, अब उठ रही होगी माँ या पापा तो ऐसे ही ना बोलेंगे। व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हो रहा है रे, इट्स मॉर्निंग, लुक, फादर क्रिसमस गेव मी दिस प्रेजेंट। फादर क्रिसमस, वो फादर क्रिसमस नहीं दिए होते, मम्मी पापा ही ला के रखे होते। ऑलराइट। सारा कहानी ऐसी झोल झमेला पे टिका हुआ भाई। फादर क्रिसमस गेव मी दिस प्रेजेंट, प्रेजेंट, गिफ्ट। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
वो दोनों कुछ में लगे हुए हैं। आजा बेटा इधर, आजा बेटा अजान। ये 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 क्या चल रहा था, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन बताना जरा। हाँ, कुछ तो चल रहा था डिस्कशन। अजान, व्हाट वाज शी टॉकिंग अबाउट? क्या बोलना है? कहा किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? हाँ, मैंने पूछा, मुझसे ही सुन लेती। हम बता देते हैं। फादर क्रिसमस गेव मी दिस प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट, है ना? ओह दैट्स लवली। अपने लाके बोल रहे हैं, दैट्स लवली। मैरी क्रिसमस डार्लिंग। ओके, राइट। डार्लिंग शोज लव। ओके, हम लोग के समय डार्लिंग वाज अ बैड वर्ड। डार्लिंग बोला। But it just means it shows love. Okay, parents can say darling to their children. You know, older brothers can say darling to their younger brothers and sisters. It's totally fine. An old teacher like me can say darling to his students, and it has nothing to do with the gender. हम लोग इस समय में ना खाली लड़कियों को ही डार्लिंग बोलते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग लगता था सिर्फ लड़कियों को डार्लिंग बोला जा सकता है। लेकिन नहीं, इसका कुछ नहीं है। डार्लिंग मीन्स just a word with affection. You can say it to a boy as well. Okay, माँ बोल सकती है अपने बेटे को, no darling, you're wrong. Okay, I love you as much as I love your daddy. Okay, yeah, you know, yeah. Number 4, congratulations, it's great news. कौन सी बात के लिए भाई? थैंक यू अभी तक पता नहीं चलेगा, आगे पता चलेगा, इसलिए एक बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं, 2-3 बार, है ना? थैंक यू वेरी मच, वी आर बोथ वेरी हैप्पी। वी आर बोथ वेरी हैप्पी, कुछ क्लू मिल रहा है दोस्तों? वी आर बोथ वेरी हैप्पी। बताओ आफिया, क्या क्लू मिला? वी आर बोथ वेरी हैप्पी, इसका मतलब क्या चल रहा है? आगे मत देखो, इधर देखो, मैं इधर देखो। कंग्रेचुलेशंस, इट्स ग्रेट न्यूज, थैंक यू वेरी मच। इधर देख बेटा, वी आर बोथ वेरी हैप्पी। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? कुछ अंदाजा लगा? वी आर, फिर नीचे देख रही है लड़की, वो आगे वाला पढ़ना चाह रही, कुछ क्लू मिल जाए सर को जवाब दे देते हैं। मैं इतना सा अंदाजा लगाने के लिए कह रहा हूँ, आगे से तो सबको अंदाजा लगेगा, यहां पर से कितना अंदाजा लग रहा है? ए ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स ग्रेट न्यूज, तो सामने वाले ने कहा थैंक यू, वी आर बोथ वेरी हैप्पी। यानी हो सकता है प्रेग्नेंट हो, माँ बाप बनने वाला हो, ये भी हो सकता है शादी होने वाली हो। अंदाजा लगाओ ना, अंदाजा ही तो लगाना है, सही थोड़ी जवाब देना है, अंदाजा लगाना था। हो सकता है डिवोर्स हो रहा हो फाइनली। ओके, जस्ट जोक। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि जहां गेस करना वहां गेस करना है, वहां सही आंसर नहीं देना है। गेस करने वाले जगह पे सही आंसर देने में आप मजा खो देंगे। मैंने अभी आखिरी वाला जो जोक मारा, वो थोड़ा बहुत तक अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बस वो जोक ही है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स ग्रेट न्यूज, ये थैंक यू वेरी मच, वी आर बोथ वेरी हैप्पी, फाइनली वी आर सेपरेटिंग। फाइनली वी आर, हाँ चलो हो रहा है फाइनल। सो व्हेन इज द बिग डे? व्हेन इज द, पूछने वाले ने पूछा, सो व्हेन इज द बिग डे? बिग डे मीन्स एन इंपॉर्टेंट डे, सो व्हेन इज द बिग डे, तो कब है भाई? पार्डन, मतलब, सॉरी फिर से पूछे। अरे योर वेडिंग डे, योर, व्हेन इज इट? फिर से देखना इज कहाँ है, देखो इज, भूल गए थे तो 1 सेकंड में, हर जगह है वो, व्हेन इज इट, ठीक है, हमको पता है कब है, बोलो। आई नो क्या? व्हेन इट इज, बस वही, बस यही है तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, अभी याद रह जाता है फिर भूल जाते हो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते, थोड़ा प्रैक्टिस करना बनता है। योर वेडिंग डे, व्हेन इज इट? December the 12th, December the December the 12th. You'll get an invitation. You'll get an invitation. आपको बुलाएंगे। You will? अच्छा चलो खाली डेट पढ़ के सुना दो सब लोग, एक दूसरे को पढ़ के सुना दो।
दिसंबर द, हाँ एक दूसरे को पढ़ के सुना दो डेट। हाँ बता दो जरा एक दूसरे को, क्या था डेट लिखा हुआ वहां पे, क्या है? व्हेन इज द वेडिंग डे? सब लोग बोल दिए एक दूसरे को। अब पूछोगे किसने फ बोला था, 12 बोला था, किसने 12 में फ छोड़ दिया था? देखो देखो देखो, वही मैं बता रहा हूँ कि मेरा काम है आपको एहसास कराना कि रिवीजन क्यों जरूरी है। लैंग्वेज में रिपीटिशन बहुत मायने रखती है। भूल गई बेचारी। आप ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत केयर करता हूं अपने स्टूडेंट्स की, इसीलिए मैंने फिंगर पॉइंट किया उसकी तरफ। 4 5 10 दिन हो गया इस बात को बोले हुए, लेकिन मैं बहुत केयर करता हूं अपने स्टूडेंट्स की। मुझे एक बात पूछना है, एकदम खत्म, मैं नहीं हूं यहाँ पर, कोई भी है। अगर कोई टीचर आपको बता दे कि आपकी लापरवाही हो रही है, आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे, थोड़ा सा भटक गए हैं, तो आप वापस आ सकते हैं कि नहीं? और कहता रहे कि नहीं ठीक जा रहे हो, तो उसी रास्ते पे चलते चलोगे कि नहीं? बात करता मैं यहीं पर, मैं सही कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे या, मैं सही करता हूँ। आई एम ऑलवेज राइट। आई एम ऑलवेज राइट ना। एज a person no, but as a teacher yes. As a person I'm not always right. No, 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 no way, come on. Who can be always right? Nobody can always be right. Nobody can be right all the time. Chat GPT also makes mistakes. Okay. So I don't accept that. I know I make mistakes, stupid mistakes. I'm stupid, you know. I am, I know. I make stupid decisions sometimes. I make stupid comments sometimes. Okay. Okay, Atif. Control Atif. Don't cook your own story. Listen to me. मेरे चैनल को देखो, अपना चैनल मत चलाओ। मेरे चैनल से जो प्रसारित हो रहा है वो देखो, उसको एंजॉय करो। ये अपना चैनल शुरू कर देता है। नहीं, गलत बात। Okay. Your wedding day, when is it? December the 12th. You'll get an invitation. गुड क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा, मुझे खुशी है कि आपने पूछ लिया। देखो कुछ एडवर्ब्स हैं इस तरह के, और जिनको हम लोग हमेशा बीवर के बाद ही रखेंगे। वी आर बोथ, वी आर ऑल, ठीक है, ये है ग्रामेटिकली करेक्ट पोजीशन। बाकी बहुत लोग वायलेट करते हैं इस रूल को, बट इट्स नॉट करेक्ट। द राइट पोजीशन इज आफ्टर बीवर, वी आर बोथ। ध्यान सुनिएगा, हम दोनों पागल हैं, कैसे बोलेंगे? वी आर बोथ क्रेजी। वी आर बोथ क्रेजी, हम दोनों समझदार हैं। वी आर बोथ wise. We are both wise. समझदार, wise, you know. We are both clever, wise. Okay. Clever is intelligent. Wise means with experience. Okay. Somebody with, maybe your brother is clever, but your papa is wise. Papa has experience, you know. Maybe your brother is clever, maybe cleverer than your father, but your papa is always wiser. He is wiser than your brother. He has more experience. That's why. Mostly people with experience are wise. I'm not wise. I'm only old. Okay. So we are both very happy. So when is the big day? Pardon? Pardon means, I couldn't hear you. I couldn't understand. Okay. Your wedding day, sir. When is it? December the 12th. You'll get an invitation. You will? I will send you an invitation. Ready for number 5? It's midnight. Happy New Year, everyone. JKL, all of you guys, respond. Yeah. Okay, I'm I, you are all JKL, okay? It's midnight. Happy New Year, everyone. Happy New Year. Okay. Yeah. Number 6. Wake up, mommy. Happy Mother's Day. Wake up, mommy. Happy Mother's Day. Thank you, darling.
Oh, what beautiful flowers. 2 days, in the previous unit we read, what beautiful tuna. What beautiful tuna. मैं बोलता हूं कि तुम एक दिन रिवीजन करो, मैं दूसरा रिवीजन दूंगा। दिया मैंने? अगर तुम उस दिन वाला रिवीजन कर लो जिस दिन मैंने पढ़ाया, उसके बाद वाला रिवीजन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे देंगे हम आपको रिस्पॉन्स, ये रिवीजन पक्का गारंटी। इस तरह से डिजाइन ही करा है ना, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ये कोर्स और जो डिजाइन किए कोर्स, इन लोग को पता है कि आप एक बार में नहीं सीख पाओगे। मतलब ये पता है हमें, इसीलिए ये चीजें हम लोग बार बार लाते हैं आपके सामने। थोड़ा सा अटका था, थोड़ा और ज्यादा हो जाए, थोड़ा और ज्यादा समझ आ जाए। व्हाट ब्यूटीफुल ट्यूना, रिमेंबर? आज सुनिए नया, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, प्लूरल। टूनास क्यों नहीं बोला बेटा? टूना इज अनकाउंटेबल। जैसे ठंडा, कितना ठंडा पानी है, इंग्लिश देर क्यों लगाई? जैसे सीखे क्या, सीखे क्या? जब बोले कितना सुंदर फूल है, तो कितना के लिए कौन सा वर्ड यहाँ यूज हुआ है? ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पर कितना के लिए और कोई वर्ड नहीं है। व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो हम जो बोले कितना ठंडा पानी है, तो फ्लावर्स की जगह पानी कर दो, और सुंदर की जगह ठंडा कर दो। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? कौन सा रॉकेट साइंस था इसमें जो चुप हो गए तुम लोग? क्या बोलना था? व्हाट कोल्ड वाटर, व्हाट कोल्ड वाटर। तो ऐसे करके सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ऐसे सरेंडर कर दोगे, नहीं पता। पढ़े पढ़े व्हाट ब्यूटीफुल ट्यूना, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और आज पढ़े कितना ठंडा पानी है। व्हाट कोल्ड। टीचर पढ़ाते पढ़ाते चिचरा गए, कितने बेकार बच्चे हैं ये। कैसे बोलेंगे वो गुस्सा करके? व्हाट हॉरिबल चिल्ड्रन, व्हाट हॉरिबल चिल्ड्रन। उनको गुस्सा आया हुआ है तो क्या बोलेंगे? अगर गुस्सा नहीं, थोड़ा सा एनोयंस खाली है, ठीक है, बोलेंगे व्हाट मिस्चीवस चिल्ड्रन, व्हाट नॉटी चिल्ड्रन, राइट? क्योंकि आप समझ रहे हैं, उनको बस इतना ही लग रहा है कि थोड़ा सा नटखट ज्यादा है, लेकिन बुरे हैं बच्चे, एकदम भागने का मन कर रहा हो। व्हाट हॉरिबल चिल्ड्रन। ओके, yeah. Papa came home. He had 6,700 rupees in his pocket. Okay. He hanged the trousers or jeans and went to wash his hands, came home, came back, checked the pants. Okay. Only 700 rupees are left. 6,000 rupees are gone. He will look at your mummy. What a horrible woman you are. He knows, but he is helpless. He can only curse. खाली गाली दे सकते हैं, वो भी हल्का हल्का, राइट? कौन सा? व्हाट अ हॉरिबल वुमन यू आर। आई हैड दैट मनी टू पे समबॉडी, आई डोंट नो। मम्मी विल से पे अनदर डे। ओके, फाइन। डज इट हैपन? इज इट घर घर की कहानी गाइस? इज इट घर घर की कहानी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया? होता है? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं होता? तो फिर मम्मी कैसे पैसे जमा करती है? हाँ, मम्मी का जमा करने का रास्ता क्या, और कुछ दूसरा रास्ता कहाँ बचता है फिर? बताओ बताओ। अच्छा, हो सकता है कुछ को पता ही नहीं चला मैंने क्या बोल दिया एग्जाम्पल। पता चला? राजलक्ष्मी मैंने क्या बताया था कि पापा क्या किए, आए जींस टांगे, क्या था उसमें, और वापस आए तो फिर मम्मी की तरफ देखकर क्या बोले? देवी जी आपकी जय हो, राइट? ये मतलब, और क्या बोल सकते हैं बेचारे? ये कम अगेन। Tabriz and Sajid, don't sit together. Somebody go replace Sajid. Somebody, please. Yes, yes. Huh, but I. Okay, 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 okay. Tabriz, you come here. Tabriz, you come here. Tabriz, you come here. Tabriz. लड़की को बोलो बैठने में पाप लगेगा, फिर तो पक्का तू जाके इधर माँ पारा के बगल में बैठ, चल। उसको भी पाप लगा थोड़ा सा। कम हियर, कम हियर, कम हियर। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, यहीं बैठेगा तू अब बोल भाई। भारी पाप लगवा दी। जज्बात नहीं संभलते।
ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कहाँ ऐसा कुछ है, तुम फालतू बोलते हो यार। ऑलराइट। वैसे उर्दू कैसी थी मेरी? अच्छी थी ना? मैंने पूछा कैसे, जज्बात नहीं संभलते तुम्हारे, हाँ? और कुछ अच्छे अंदाज में बोले। जज्बात आपके बर्दाश्त से नाकाबिल हो जाते हैं। क्या बोल दिया मैंने, उल्टा पुल्टा बोल दिया। नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं आपके। ओके। ऑलराइट। ये आई लव लर्निंग लैंग्वेजेस, ठीक है, कुछ भी नया इस तरह का उल्टा पुल्टा सीखना, मतलब तो सीधा सीधा सीखना, उल्टा पुल्टा नहीं, ये। ओके। नेक्स्ट। Wake up, mommy. Happy Mother's Day. Thank you, darling. Oh, what beautiful flowers. And a cup of tea? Well, aren't I lucky? देखना वो aren't I, कौन बोल रहा है? माँ बोल रही है। किससे बोल रही है? बच्चे से बोल रही है। फॉर्मल इंग्लिश की इनफॉर्मल इंग्लिश? मेरे माँ, मेरे बाप, ऐसा ना कर, ये क्या हो रहा है? बच्चे के साथ हाँ बातचीत करती है माँ, वो फॉर्मल बातचीत होती है। श्रीमान आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, ऐसे होता है? ऐसे बोलते हैं बेटा, बयान से ऐसे बोलती है माँ, क्या बोलती है? कम ऑन, क्या क्या फॉर्मल या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। ओके। माँ बेटा बातचीत इनफॉर्मल। हाँ, माँ अगर बहुत ज्यादा वो पुराने जमाने की इम्प्रेस हो और ऐसे करते हुए बेटा है सामने में, तो बात अलग है फिर। दैट्स अनदर स्टोरी, इन द होल, कोर्ट। ओके। बट नॉर्मली a mother and son conversation is a very informal casual conversation. प्रॉब्लम क्या है कि इसको ग्रामर बोल करके सिखाते हैं कुछ टीचर्स की, ग्रामर है, आंट लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कैजुअल कॉन्वर्सेशन की बातचीत है भैया, देख लो। आंट आई लकी, इसलिए कि एमंट बोल नहीं सकते, एमंट तो होता ही नहीं है। याद है कि नहीं याद है? इजंट होता है, आंट होता है, एमंट नहीं होता। एम नॉट होता है, अलग अलग। नासिर ध्यान दे बेटा, एम आई नॉट, एम आई नॉट। तो जब वेल आंट आई लकी, ये मतलब कितने लकी हैं हम। जैसे बोले, जैसे मैं बोलूं इजंट तब्रेज हैंडसम, तो मैंने क्या बोला? देखो ना, सुंदर है ना लड़का, हैंडसम है। कैसे बोला मैंने? इजंट तब्रेज हैंडसम। ऑलराइट। ठीक है, तो आप कभी कभी अपनी ओपिनियन बताते हैं एक नेगेटिव क्वेश्चन, राइट? कैसे? मान लो कि आप किसी के सामने इजंट विनेसर फनी, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप बोल रहे हैं विनेसर इज फनी, लेकिन ये बोलने का अंदाज अलग है थोड़ा। एक होता है सीधे सीधे बोलना विनेसर इज फनी, राइट? और एक है सामने वाले को एक्नॉलेज करते हुए बोलना इजंट विनेसर फनी, मतलब मुझे को ऐसा लगता है, तुम बता दो, ऐसा वाला एटीट्यूड, राइट? इजंट विनेसर फनी, ऐसे करके। आप लोग भी देखोगे किसी बच्चे को देख के बोलते हैं इजंट ही क्यूट, ऐसे बोले होंगे आप, इजंट ही क्यूट। वैसे ही कभी आप अपने बारे में बोलना है, ठीक है? तो एमंट आई कैसे बोले? एमंट होता ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ठीक है। मतलब मान लो कोई बात बोली और मैंने कहा सही बोला ना मैंने, आंट आई करेक्ट, आंट आई राइट? ठीक है, बात समझ में आई? हालांकि ये ज्यादा यूज नहीं होता, बस कैजुअली ऐसे ही बोलते हैं लोग, ठीक है, कैजुअली। ठीक। फॉर्मल जगहों पे इसका कोई प्लेस नहीं है, लेकिन किताब के मारे ग्रामर पढ़े बेचारे इंग्लिश टीचर्स वो पढ़ाते हैं आई के साथ आरंट लगता है, रूल पढ़िए। अरे लगता वगता नहीं है, कैजुअल इंग्लिश है। ठीक है, इसको अवॉइड किया जाता है फॉर्मल जगहों पे, और तुम पढ़ा रहे हो इसको ग्रामर बता के, गड्ढे में कूद रहे खुदा रहे। आंट आई लकी इज अ वेरी कैजुअल एक्सप्रेशन, कॉन्वर्सेशन में लोग बोलते हैं। फॉर्मल जगह पे क्यों बोलेंगे, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ेगी? ऐसा कोई सेंटेंस फॉर्मेशन क्यों होगा जिसमें आंट आई बोलना पड़े? फॉर्मल जगह पे समझिएगा, ठीक है। तो आंट आई लकी, माँ ने कहा इतने लकी है हम, नहीं ऐसे वाला टोन में कि मेरे लिए तुम फूल लाए, चाय लाए हो। वेल आंट आई लकी। ओके। देखो हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा हुआ, ओके, तो पूरा पहले सिचुएशन सुना। द हस्बैंड एंड वाइफ आर हैविंग अ फाइट, एन आर्ग्यूमेंट और बिग फाइट। द द वाइफ इज complaining as usual, okay. They always do. So the husband, बोले तो तुमको हैप्पी बर्थडे के नहीं बोले? aren't I lucky, my husband wished me happy birthday on my birthday.
राइट। तो वो हस्बैंड ने बोला विश तो किए ना तुमको, हैप्पी बर्थडे बोले थे ना। अरे भाई कितना किस्मत मेरा अच्छा है, मेरा हस्बैंड हमको हैप्पी बर्थडे बोला मेरे बर्थडे के दिन, सही में। तो ऐसे तंज मारेगी ना वो, इसको सार्केज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सार्केज्म। इसको सार्केज्म कहते हैं। वो कैसे बोले इंग्लिश में? ओह वांट आई लकी, माय हस्बैंड विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, वाओ हाउ लकी आई एम, रियली लकी। ओके। तो वो इस जगह ऐसे, अब बताइए फॉर्मल बातचीत में आंट आई कहाँ जाएगा भाई? कहाँ आ सकता है? ये सिर्फ ऐसे ही कैजुअल बातचीत में आंट आई आता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आप लोग को कि 90% जो हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूट खोल के बैठे होते हैं, 90% हम लोग ना ग्रामर किताबों से पढ़ लेते हैं जो किताबों में लिखा है, और उसको चिपकाते रहते हैं बिना समझ बनाए अपने अंदर। और इस वजह से वहां बैठे बच्चों को दिमाग में रूल्स तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल फीलिंग नहीं आती कुछ भी, कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। टैग्स तो आपने सीख लिया होगा बचपन में, स्कूल में क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ना टीचर ने पूछा और ना आपने पूछा उनसे कि लगाते क्यों है, क्या जरूरत है इसकी। ओके। तो चलिए देखते हैं। वेल आंट आई लकी, द मदर सेज। सरकाजम है इसमें? इसमें नहीं सरकाजम है सर, ये तो खुश हो रही है, बच्चा लेके आया है कॉफी चाय, बच्चा लेके आया है क्या, उसमें सरकाजम नहीं है। वो सरकाजम पत्नी दिखा रही थी जब उसने बोला विश तो किया ना तुमको हैप्पी बर्थडे। उसको भी नहीं बोलना चाहिए लाइट, राइट? आई डिड विश यू, डिड आई? विश तो किया ना तुमको। हाँ, aren't I lucky you wished me, wow, I should be, I should just spend all my day smiling because my husband wished me happy birthday. Yeah, we made you a card, look, ये सेंटेंस पढ़ना, एंड वी मेड यू अ। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैंने आपको कार्ड बना दिया। सोचोगे ही क्यों ऐसा? तो माँ जब बच्चा जब बोल रहा है वी मेड यू कार्ड, तो बच्चा बोलेगा हमने तुमको कार्ड बना दिया। माँ को बोलेगा तुम ऐसे सोचे भी क्यों? अब सोचो तुमने वो क्या बोला, उसने बच्चे ने क्या बोला, तुम अंदाज लगाओ। वी मेड यू कार्ड, लुक। हो गया? ठीक है। अब आप मेरे लिए बोले कि सर हम आपके लिए गाजर का हलवा बनाए, चलिए बोलिए इंग्लिश में। ठीक है। अब बोलो सबसे बढ़िया सेंटेंस, सर हम आपके लिए चिकन बनाए हैं। हाँ हिंदी में फनी लगता है ना थोड़ा सा, लेकिन इंग्लिश में परफेक्ट है। आई मेड यू चिकन। ओके, ये आई मेड यू हलवा। हंस भी रही है कि उसको लग रहा है कि पूछ कुछ के हलवा कर दिया आपको। आई मेड यू हलवा। ओके। थैंक यू आफिया, अफनी आफिया, I'm so lucky that you made me halwa. Where is it? Is it invisible? The halwa is invisible, guys. Only very clever people can see the halwa that she has brought me. And the pot is also invisible, by the way. We made you a card. Look. We made you a card. Look. It's beautiful. किसने बोला? Obviously, अगर कॉन्वर्सेशन फॉलो कर रहे हो फट से बोल दोगे, कौन बोलेगा ये? द मदर सेड दैट इट्स ब्यूटिफुल, व्हाट क्लेवर चिल्ड्रन यू आर। व्हाट, अभी फिर से व्हाट क्लेवर चिल्ड्रन, हिंदी। कितना मेरा बच्चा तेज है, कितना मेरा बच्चा तेज दिमाग का है, वाह कार्ड बना लिया। हाँ, व्हाट क्लेवर चिल्ड्रन यू आर। एक बच्चा विश कर रहा है या एक से ज्यादा बच्चे विश कर रहे हैं? अगर एक कर रहा होता तो माँ व्हाट क्लेवर चिल्ड्रन क्यों बोलती? कहाँ गया तुम्हारा कॉमन सेंस? माँ क्या बोल रही है? व्हाट क्लेवर चिल्ड्रन यू आर। मुझे बता दो कि एक बच्चा अगर बोल रहा होता तो क्या बोलती? व्हाट क्लेवर, व्हाट ए क्लेवर चाइल्ड बोलती, व्हाट ए क्लेवर चाइल्ड यू आर। लेकिन इसने क्या बोला? चिल्ड्रन यू आर। इट मीन्स it's not just one person there. There are two or three or more children. Okay? And that's why the mother said, हाँ उसने कहा we made your card, वहां से भी क्लू मिल गया, we made your card, right? Not I made your card. Okay, done. Now last one, number 7. Thank goodness it's Friday. Yeah, have a good weekend. Same to you. Now listen to this audio file 7.9.
No whispering. Speak Tape loudly, script but speak loudly. 7.9. Guys, Special don't whisper to each other. occasions. 1. Whisper matlab? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday, dear Grandma. Happy birthday to you. Special occasions. 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Grandma. Happy birthday to you. 2. Did you get any Valentine cards? Yes, I did. Listen to this. Roses are red, violets are blue. You are my Valentine and I love you. Wow. Do you know who it's from? No idea. No idea. 3. Mummy, Daddy, wake up! It's Christmas! What time is it? It's morning. Look, Father Christmas gave me this present. Oh, that's lovely. Merry Christmas, darling. 4. Congratulations, it's great news. Thank you very much. We're both very happy. So, when's the big day? Pardon? Your wedding day. When is it? December the 12th. You'll get an invitation. 5. What were you doing? It's midnight. Happy New Year, everyone! Happy New Year! 6. Wake up, Mummy! Happy Mother's Day! Thank you, darling. Oh, what beautiful flowers. And a cup of tea. Well, aren't I lucky? And we made you a card. Look! It's beautiful. What clever children you are. 7. Thank goodness it's Friday. Yeah, have a good weekend. Same to you. Tape script 7.9. Sharing audio files. Okay? Listen to them at home. Tape script 7.9. Special occasions. 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Grandma. All right. Fine then. That's all for today. Now, last page of Unit 7. Last page of Unit 7 is your homework. Tomorrow, nothing will stop us from starting Unit 8. Okay? And make sure that everybody is present because it's an important unit. And kal pata chalega Ram aam khata hai. Ki nahi khata hai. Okay? We will find out. See ya. Bye-bye, guys.